یہ صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، یہ دھوکے، لالچ اور محبت کے جھوٹے چہروں کی داستان ہے۔ جس بادشاہ کے پاس پوری دنیا تھی، اس کے پاس صرف ایک وفادار انسان بھی نہیں تھا، 10 ملکیں یعنی کہ 10 بیویاں اور ایک تاج، اور اسی سازش جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک راز تھا، اور ہر راز کے پیچھے ایک خطرناک دھوکہ۔ آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں، اس کا انجام آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، دور دراز پہاڑوں، گہرے جنگلات، بہتے دریاؤں اور سنہری کھیتوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی، جسے زرنگار کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اپنی دولت، شان و شوکت اور طاقت کی وجہ سے پورے خطے میں مشہور تھی۔ یہاں کے بازار ہمیشہ روشن رہتے، گلیوں میں خوشبو بکھرتی رہتی، اور محل کی دیواریں قیمتی پتھروں سے جگمگاتی تھی۔ اس سلطنت کا حکمران بادشاہ جلال الدین تھا۔ وہ ایک بہادر، طاقتور اور ذہین بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کئی جنگیں جیت کر اپنی سلطنت کو وسیع کیا تھا۔ دشمن اس کے نام سے کانپتے تھے، اور رایا اسے انصاف پسند بادشاہ مانتی تھی۔ لیکن ایک حقیقت ایسی تھی جسے صرف محل کی دیواریں جانتی تھی۔ بادشاہ جلال الدین کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اس کی 10 بیویاں تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کی سچی خیر خواہ نہ تھی۔ ہر ایک نے دل میں کوئی نہ کوئی لالچ، خواہش یا خفیہ منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ محل میں ہر وقت خاموش سازشوں کا کھیل چلتا تھا۔ بازار سب ہنستی مسکراتی تھی، مگر اندر ہی اندر ہر ایک دوسری کو نیچا دکھانے اور بادشاہ پر زیادہ اثر حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ پہلی بیوی مہر النساء نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے، مگر وہ حد سے زیادہ مغرور تھی۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ صرف اسی پر فدا ہے۔ وہ اکثر دوسری بیویوں کو حقارت سے دیکھتی۔ دوسری بیوی گل رخ بہت چلاک عورت تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی باتیں سن کر آگے پہنچاتی اور محل میں لڑائیاں کرواتی۔ تیسری بیوی زینب کو دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ ہر وقت خزانے، زیورات اور قیمتی چیزوں کو دیکھنا پسند کرتی تھی۔ چوتھی بیوی شاہ بانو نہایت حسد کرنے والی تھی۔ اگر بادشاہ کسی دوسری بیوی سے اچھے لہجے میں بات کر لیتا تو وہ کئی دن تک جلتی رہتی۔ پانچویں بیوی نور جہاں بہت ذہین مگر خطرناک عورت تھی۔ وہ لوگوں کی کمزوریاں پہچاننے میں ماہر تھی۔ چھٹی بیوی صدف بظاہر نرم مزاج لگتی، مگر اندر سے بہت خود غرض تھی۔ ساتویں بیوی نادرہ خاموش رہتی، لیکن اسی خاموشی کے پیچھے سب سے زیادہ خطرناک منصوبے چھپے ہوئے۔ آٹھویں بیوی ماں رخ ہر وقت معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی۔ نویں بیوی دل آویز اقتدار کی بھوکی تھی، اور 10ویں بیوی رابعہ وہ سب سے زیادہ پر اسرار عورت تھی۔ وہ کم بولتی، آہستہ چلتی، نرم لہجے میں بات کرتی، عبادت گزار دکھائی دیتی، مگر اس کے دل میں ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو پوری سلطنت کو تباہ کر سکتا تھا۔ محل کے اندر ایک عجیب ماحول رہتا، وہ ہر طرف خوشبو، قیمتی پردے، سونے کے برتن اور ہیرے جواہرات تھے، مگر ان سب کے پیچھے بے اعتمادی اور نفرت چھپی تھی۔ ایک رات بادشاہ اپنے خاص کمرے میں بیٹھا سلطنت کے معاملات دیکھ رہا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور صدف گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ حضور، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ بادشاہ نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ صدف نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے محل میں کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس کی ہمت ہوئی؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر میں نے 2 خادماؤں کو آپ کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے۔ بادشاہ فوراً غصے میں آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے محل کی تلاشی لی جائے۔ رات بھر شور مچا رہا، خادماؤں سے پوچھ گچھ ہوئی، کمروں کی تلاشی لی گئی، مگر کچھ نہ ملا۔ صبح ہوتے ہی محل میں خوف پھیل چکا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سب نادرہ کی چال تھی۔ اس نے جان بوجھ کر خادماؤں کے ذریعے افواہ پھیلائی تاکہ بادشاہ سب پر شک کرنے لگے۔ چند دن بعد بادشاہ شکار پر گیا۔ اس کے ساتھ چند سپاہی اور 2 بیویاں بھی تھی۔ جنگل بہت گھنا تھا، درخت اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے زمین تک پہنچتی۔ اچانک جھاڑیوں میں سے زور سے حرکت ہوئی۔ ایک زخمی شیر غصے میں باہر نکلا اور سیدھا بادشاہ کی طرف لپکا۔ سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بادشاہ نے فوراً تلوار نکالی، مگر اسی لمحے ماں رخ نے خوف زدہ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے گھوڑے کی لگام زور سے کھینچی۔ بادشاہ توازن کھو بیٹھا اور زمین پر گر گیا۔ شیر اس کی طرف لپکا۔ چند لمحوں کے لیے سب کی سانس رک گئی۔ آخرکار سپاہیوں نے تیر برسا کر شیر کو مار ڈالا، مگر بادشاہ شدید زخمی ہو گیا۔ واپس آتے ہوئے ماں رخ مسلسل روتی رہی۔ حضور، مجھے معاف کر دیں، میں تو ڈر گئی تھی۔ بادشاہ خاموش رہا، مگر اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ محل واپس پہنچنے کے بعد بادشاہ نے اپنے سب سے قابل وزیر فخر الدین کو بلایا۔
फखरुद्दीन एक दाना और ईमानदार इंसान था। इसके बाल सफेद हो चुके थे मगर अकल आज भी तेज थी। बादशाह ने कहा, फखरुद्दीन मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द सब बदल गए हैं। वजीर ने सुकून से जवाब दिया, जहाँ मोहब्बत से ज्यादा लालच हो वहाँ वफादारी मर जाती है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा। इसी रात महल में एक बड़ी दावत रखी गई। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। मौसीकार साज बजा रहे थे, रकासाई रक्स कर रही थी और सोने के बर्तनों में खाने पेश किए जा रहे थे। मगर इस चमकती हुई महफिल के पीछे एक खतरनाक मंसूबा छुपा था। बावर्ची को रिश्वत दे दी ताकि बादशाह के खाने में ऐसी जड़ी बूटी मिला दी जाए जिससे वो कई दिन तक बीमार रहे। जब बादशाह ने पहला लुकमा उठाया तो अचानक वजीर फखरुद्दीन आगे बढ़ा और प्लेट जमीन पर गिरा दी। पूरा दरबार हैरान रह गया। ये क्या गुस्ताखी है? बादशाह ने गुस्से से धाड़ा। वजीर बोला, हजूर इस खाने में खतरनाक चीज मिलाई गई है। फौरन बावर्ची को पकड़ा गया। सख्त पूछ गुछ के बाद इसने सब कुछ बता दिया। दिल आवेज खौफ से कांपने लगी। मैंने आपको मारने का इरादा नहीं किया था। बादशाह की आंखों में गुस्सा था मगर इसके दिल में दुख ज्यादा था। इसी रात वो देर तक जागता रहा। इसे पहली बार महसूस हुआ कि इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग सिर्फ इसकी ताकत से मोहब्बत करते हैं, इससे नहीं। लेकिन असल खेल अभी बाकी था। राबिया खामोशी से सब कुछ देख रही थी। वो जानती थी कि बाकी बीवियां सिर्फ छोटी मोटी साजिशें कर सकती हैं मगर वो पूरी सल्तनत पर कब्जा चाहती थी। इसने आस्ता आस्ता खजानों, मुहाफिजों और चंद दरबारियों को अपने काबू में करना शुरू कर दिया। वो सबको तोहफे देती, नरम लहजे में बातें करती और फिर आस्ता आस्ता इनसे अपने काम निकलवा ले। एक रात इसने तमाम बीवियों को खुफिया तौर पर महल के पुराने हिस्से में बुलाया। हम सब अलग अलग चालें चल रही हैं, राबिया ने कहा, इसीलिए हम नाकाम रहती हैं। अगर हम इकट्ठी हो जाएं तो बादशाह को आसानी से कमजोर किया जा सकता है। गुलरुख ने पूछा, फिर क्या होगा? राबिया की आंखों में अजीब चमक आई। फिर सल्तनत पर हमारा राज होगा। तमाम औरतें खामोश हो गई। कुछ दिन बाद अचानक खबर फैली कि खजाने से कीमती हीरे गायब हो गए हैं। बादशाह आग बगोला हो गया। सिपाहियों ने पूरे महल में तलाशी ली मगर कुछ न मिला। इसी दौरान राबिया ने एक जेली खत बादशाह के कमरे में रखवा दिया। खत में लिखा था, आपका वजीर फखरुद्दीन दुश्मन रियासत से मिला हुआ है। खजाने की चोरी भी इसी ने करवाई है। बादशाह ये पढ़कर हिल गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था मगर शक दिल में जगह बना चुका था। अगले दिन दरबार लगा। फखरुद्दीन बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या तुमने मेरे साथ गद्दारी की? वजीर हैरान रह गया। हजूर, मैंने हमेशा वफादारी की है। मगर बादशाह गुस्से में अंधा हो चुका था। इसने वजीर को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। तो सब बीवियों के चेहरे पर खामोश खुशी फैल गई। कुछ हफ्तों बाद सल्तनत के हालात खराब होने लगे। सरहदों पर दुश्मन हमले करने लगे। खजाना कम होने लगा। राया परेशान होने लगी। बादशाह दिन रात फिक्र में डूबा रहता। एक रात वो महल के बाग में अकेला बैठा था। चांदनी खामोशी से फैली हुई थी। अचानक एक बूढ़ा माली इसके करीब आया। हजूर, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? बादशाह ने थके हुए लहजे में कहा, कहो। माली बोला, मैंने सारी जिंदगी पौधे उगाए हैं, एक बात सीखी है, अगर जड़ खराब हो जाए तो दरख्त ज्यादा देर कायम नहीं रहता। बादशाह खामोश हो गया। ये अल्फाज इसके दिल में तीर की तरह उतर गए। इसी रात इसने खुफिया तहकीकात शुरू करने का फैसला किया। चंद वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि महल की हर सरगर्मी पर नजर रखी जाए। चंद दिन बाद हैरान कुन राज सामने आने लगे। मुहाफिज रात को खुफिया कमरों में जाते थे। खादमाओं को रिश्वत दी जा रही थी। महल से दुश्मन रियासतों को खतूत बेचे जा रहे थे और इन सब के पीछे राबिया थी। बादशाह को यकीन नहीं आया। इसने खुद से सच देखने का फैसला किया। एक रात वो स्याह चादर ओढ़कर महल के खुफिया रास्तों में गया। महल का पुराना हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर चलती मुश्किलें खौफनाक साए बना रही थी। अचानक एक कमरे से आवाज आई। बादशाह आस्था से दरवाजे के करीब गया। अंदर राबिया और बाकी बीवियां बैठी थी। राबिया बोल रही थी, बादशाह अब कमजोर हो चुका है, वजीर कैद में है, खजाना हमारे काबू में आ रहा है, चंद ही दिनों में हम सल्तनत के फैसले खुद करेंगी। गुलरुख हंसने लगी और बादशाह को कुछ खबर भी नहीं। तमाम औरतें हंसने लगी। दरवाजे के बाहर खड़ा बादशाह पत्थर बन गया। इसके दिल में गुस्सा, दुख और शर्मिंदगी एक साथ उठने लगी। अचानक इसके कदमों से आवाज हुई। कौन है? राबिया चीखी। बादशाह ने दरवाजा जोर से खोला। तमाम औरतें खौफ से खड़ी हो गई। तो ये है तुम सबकी हकीकत? बादशाह की आवाज गूंज उठी। किसी के पास जवाब ना था। राबिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। हजूर, आप गलत समझ रहे हैं,
खामोश, बादशाह धाड़ा। मैंने सब कुछ सुन लिया। फौरन सिपाहियों को बुलाया गया। तमाम बीवियों को नजरबंद कर दिया गया। अगले दिन दरबार लगा। पूरा महल खामोश था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मगर आज इसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि थकन थी। इसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी भर चेहरों पर यकीन किया, दिलों को ना पहचान सका। मैंने चापलूसी को मोहब्बत समझा। फिर इसने वजीर फखरुद्दीन को रहा करने का हुक्म दिया। वजीर दरबार में आया तो बादशाह इसके सामने खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो। पूरा दरबार हैरान रह गया। फखरुद्दीन ने सुकून से कहा, जो इंसान अपनी गलती मान ले वही असल बादशाह होता है। इस दिन बादशाह ने अपने 10 बीवियों को महल से निकालने का हुक्म दिया। कुछ को दूर इलाकों में भेज दिया गया, कुछ को नजर बंद कर दिया गया। महल पहली बार खामोश हुआ। साजिशों की सरगोशियां खत्म हो गई, मगर बादशाह के दिल का सुकून अभी वापस नहीं आया था। वो अक्सर रातों को जागता रहता और सोचता कि आखिर इसकी जिंदगी यहाँ तक क्यों पहुंची। एक दिन वो आम लिबास पहनकर शहर की गलियों में निकल गया। वो जानना चाहता था कि आम लोग कैसे जीते हैं। वहाँ इसने एक गरीब बढ़ई को देखा। इसका छोटा सा घर था। घर में दौलत ना थी मगर सुकून था। बढ़ई अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठा हंस रहा था। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खामोश कैसे हो? फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? बढ़ई मुस्कुराया, क्योंकि मेरे घर में एतमाद है। जहाँ एतमाद हो वहाँ थोड़ी रोटी भी नेमत लगती है। ये अल्फाज बादशाह के दिल में उतर गए। महल वापस आकर इसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। इसने अवाम के मसाइल सुनने शुरू किए, जालिम अफसरों को सजा दी, ईमानदार लोगों को अहम ओहदे दिए। वक्त गुजरता गया। सल्तनत दोबारा खुशहाल होने लगी। अवाम फिर बादशाह की तारीफ करने लगी। लेकिन एक रात माजी दोबारा इसके दरवाजे पर आ गया। तेज बारिश हो रही थी। महल के दरवाजे पर एक नकाब पोश औरत आई। सिपाहियों ने रोका, मगर इसने कहा, बादशाह से कहो राबिया आई है। बादशाह हैरान रह गया। इसने इसे अंदर बुलाया। राबिया कमजोर और बीमार लग रही थी। इसकी आंखों में अब वो गुरूर ना था। तुम यहाँ क्यों आई हो? बादशाह ने सर्द लहजे में पूछा। राबिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं माफी मांगने आई हूँ। बादशाह खामोश रहा। मैंने हमेशा ताकत चाही। मुझे लगा इक्तदार ही सब कुछ है, मगर जब सब छिन गया तो एहसास हुआ कि इंसान अपने अमाल से हारता है। कमरे में खामोशी फैल गई। आखिरकार बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, मगर शायद माफ करना ज्यादा मुश्किल और बेहतर काम है। राबिया हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इलाज और रहने की जगह दे दी जाए, मगर महल में वापस आने की इजाजत ना हो। राबिया रोती हुई चली गई। इस रात बादशाह ने पहली बार दिल का सुकून महसूस किया। अब वो जान चुका था कि ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि इंसाफ, सच्चाई और माफी इंसान को अजीम बना देती है।